हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीवी स्कूल। मैं कविता ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਥਸ ਟੀਚਰ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਫਰਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਾਰਡਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਡਾਈਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਆਇਨਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ। ਔਰ ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, if a letter is selected from the word assassination, find the probability of getting a consonant or a vowel। So word ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ assassination। ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ word ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਡਸ। अच्छा ये अलग अलग है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, इकट्ठा और वाला नहीं है सिस्टम। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करते हैं, वर्ड्स नहीं सॉरी, वर्ड का इक्वल ही है टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स कितने ने साडे कोल देखो, A E I O U, these are known as vowels। so A E I O U ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ consonants। ਇਹ vowel ਹੈ 1 2 3 4 5 6 vowels ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਅ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ E ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਅਪਨ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਸੀਬਲ ਆਊਟਕਮਸ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। कॉन्सोनेंट किन्ने आए साडे कोल 7, टोटल किन्ने ने 13। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट असी ये फाइंड करना है, तो वॉवल किन्ने ने साडे कोल 6। सो 6 अपॉन टोटल कितना है 13। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन दी स्टेटमेंट है, इफ x is selected from the numbers -1 -2 0 1 2 at random। अगर ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ at random, then find the probability that x square is less than 4, x square is less than 2। probability find करनी है कि x ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਆਵੇ ਜਿਹਦਾ square less than 2 ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, let E be the event, या फिर E contains, इस तरह लिख लेने हैं, E contains such x such that x square is less than 2। तो देखो E ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ E ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, E ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਲੈਣੇ ਹੈ x ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 2 ਤੋਂ ਕੀ ਆਵੇ ਛੋਟਾ। ਆ ਸਾਰੇ x डिनोट ਕਰਦੇ, ਦੇਖੋ -1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1, 2 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਯੈਸ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ -1 ਆ ਜਾਏਗਾ। -2 ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4 और 4 2 तो छोटा नहीं है, तो 4
-2 नहीं आएगा, 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 0, 2 तो छोटा है, 1 का स्क्वायर 1, 2 तो छोटा है, ये भी आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 तो छोटा नहीं है, तो सिर्फ यही नंबर्स आएंगे। The probability of E कितना हो गया, number of favorable outcomes, those are 3 upon total number of possible outcomes are 1 2 3 4 5. So this is our answer. अगर क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ x² less than 4 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਆਣੀ ਸੀ। ਰਹਿ ਕਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ, -2 ਤੇ 2, -2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 4 ਔਰ 4 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ -2 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸੀ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ 2 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ 4 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Find the probability of getting 53 Sundays in a leap year। ਇੱਕ ਲੀਪ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 53 ਸੰਡੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੇਜ਼ in a leap year, ਕਿੰਨੇ ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, 366, 366 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਲੀਪ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। किन्ने वीक्स बने हैं, जैसे वीक्स कैलकुलेट करने हैं तो 366 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ डिवाइड कर देने ਆ, जैसे ਨੂੰ वीक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੀਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ। 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 52 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਔਰ 2 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, मतलब साढ़े कोल 52 कंप्लीट वीक्स होंगे ते नाल 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। सो वी गेट there are 52 complete weeks and 2 days extra in a leap year। डिवाइड करे ते सानू पता चलिया there are 52 complete weeks and 2 days extra in a leap year। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਐਕਸਟਰਾ ਬਚ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ 52 ਵੀਕਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਮਤਲਬ 52 ਵੀਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਸੰਡੇਜ਼ ਤਾਂ ਆ ਗਏ। ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੰਡੇਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, 53 ਸੰਡੇਜ਼ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ ਜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ these 2 days may be, these 2 days may be, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਸੰਡੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੋਵੇ ਮੰਡੇ। this is possible। इस तरह पॉसिबल है कि ਜਿਹੜੇ बचे हुए दिन है वो की है, मंडे एंड ट्यूसडे। it is possible to get Tuesday and Wednesday, Tuesday and Wednesday, और possibility है Wednesday and Thursday। possibility is Thursday and Friday, Friday and Saturday, और Saturday and Sunday। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਚੇ ਹੋਏ 2 ਦਿਨ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੈਨਸਡੇ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਫਰਾਈਡੇ, ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਡੇਜ਼ ਆਣਗੇ, ਐਦਾਂ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਨੇ, ਸੰਡੇ ਮੰਡੇ, ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੈਨਸਡੇ, ਵੈਨਸਡੇ ਥਰਸਡੇ, ਥਰਸਡੇ ਫਰਾਈਡੇ, ਫਰਾਈਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਐਂਡ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ। ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ ਚ ਕੀ ਹੈ,
52 ਸੰਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਹਰ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ 53 ਸੰਡੇਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। 53 ਸੰਡੇਜ਼ ਤਾਂ ਬਣਨਗੇ ਜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਮੰਡੇ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੈਟਰਡੇ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਵੇ ਸੰਡੇ। ਸੰਡੇ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਰਿਕੁਆਇਰਡ probability E is equals to favorable outcomes ਕਿੰਨੇ ਨੇ 2 ਇਕਾ ਤੇ ਇਕਾ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 7, so 2/7 is the required probability। very important question है ये और easy भी बहुत है। ਇੱਥੇ find the probability of getting 53 Sundays ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਵੀ day ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, same method ਚੱਲੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ same। और in a लीप ईयर ਦੀ ਬਜਾਏ नॉन लीप ईयर ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, नॉन लीप ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ 365, ਜੇ 365 ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 1 ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਣਗੇ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ, ਇੱਕ ਡੇ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ that day may be ਸੈਟਰਡੇ, ਸੰਡੇ, ਮੰਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਵੈਨਸਡੇ, ਥਰਸਡੇ, ਫਰਾਈਡੇ। 7 ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੇਵਰ ਚ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਔਰ ਟੋਟਲ 7 ਹੀ ਆਣਗੇ। ਸੋ नॉन लीप ईयर वाला क्वेश्चन तुसी अपने आप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल किंग्स, क्वींस एंड जैक्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक of 52 cards। Now remaining cards are well shuffled and one card is drawn out of them। Find the probability that this card is first red face card, second black face card, third है ब्लैक कार्ड, फोर्थ है साढ़े कोल एस कार्ड, और फिफ्थ है साढ़े कोल असी ले लेने एस कार्ड तो बाद रेड फेस कार्ड हो गया, ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक कार्ड, एस कार्ड एंड जेड। चलो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन समझते हैं। पहले 52 कार्ड्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿੰਗਸ, ਕੁਈਨਸ ਐਂਡ ਜੈਕਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 52 ਕਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, 52 ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 4 ਕੁਈਨ, 4 ਜੈਕ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 + 4 8 + 4 12 कार्ड्स तक काट देते, बाकी कितने बचे साढ़े कोल 40 कार्ड्स। आफ्टर रिमूविंग all kings, jacks and queens, number of cards left is equals to 40। साढ़े कोल 40 कार्ड्स बचे और उन्हां 40 कार्ड्स दे विचों एक कार्ड कढना है। मतलब हुण 52 कार्ड्स वाला काम तां भुल जाओ, वो खत्म। साडा काम किहदे नाल चलेगा 40 कार्ड्स दे नाल। हुण जिहड़े 40 कार्ड्स ने ओहदे विच कोई किंग नहीं है, कोई क्वीन नहीं है, कोई जैक नहीं है, क्योंकि ये 12 कार्ड्स रिमूव कर दिते। हुण असीं कढना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड। जिहड़े बचे हुए कार्ड्स है उन्हां विच फेस कार्ड्स वो भी रेड होने की प्रोबेबिलिटी देखो। फेस कार्ड कहते किनू है, किंग, क्वीन, जैक, वो तो है ही नहीं ना 40 कार्ड्स दे विच। वो तो असीं पहले ही 12 काट दिते, ब्लैक भी काट दिते और रेड भी काट दिते। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड
ਇਹਨਾਂ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਫੇਸ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਰੈਡ ਨਾ ਬਲੈਕ, क्योंकि 12 फेस कार्ड सी तो पहले ही काट देते. So 0/52 this is 0. Next is black face card. फिर से है ही नहीं, फेस कार्ड ही नहीं हैगा, ना रेड ना ब्लैक. 0/52 0. नेक्स्ट है थर्ड है साढ़े को ब्लैक कार्ड. वो सीगा ब्लैक फेस कार्ड, होना ब्लैक कार्ड. देखो 40 कार्ड्स ने, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 12 कार्ड्स ਕੱਢੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ किंग ਕਿੰਨੇ ਸੀ, 2 ਰੈਡ 2 ਬਲੈਕ, 2 + 2 2 ਰੈਡ 2 ਬਲੈਕ, 2 ਰੈਡ 2 ਬਲੈਕ, 2 ਰੈਡ 2 ਬਲੈਕ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ 6 ਅਸੀਂ ਰੈਡ ਬਲੈਕ ਰੈਡ ਬਲੈਕ ਰੈਡ ਬਲੈਕ, 6 ਅਸੀਂ ਰੈਡ ਕਾਰਡਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, 6 ਬਲੈਕ ਕਾਰਡਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ. ਟੋਟਲ 40 कार्ड्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 12 कार्ड्स ਨਿਕਲੇ, 6 ਰੈਡ ਨਿਕਲੇ, 6 ਬਲੈਕ ਨਿਕਲੇ. 26 टोटल रेड होंगे, 26 ब्लैक होंगे. 6 रेड निकल गए, 6 ब्लैक निकल गए, मतलब जो 40 बचे उन्हें 20 ब्लैक ने, 20 की ने रेड. 20 फेवरेबल, 40 टोटल, तो 1/2 इज आवर आंसर. फोर्थ पार्ट है एस कार्ड. एस कार्ड का देखो सारे पे ऐसे कोई भी नहीं कटिया. 40 कार्ड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ एस कार्ड्स पे है. 4 favorable, 40 total, so 1/10 is our answer. Next है जैक कार्ड. Again जैक है ही नहीं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ रिमूव कर देते सी, so जैक कार्ड ਪਿਆ ही नहीं. 0/40 मतलब 0 is our answer. So ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ कार्ड या कुछ भी पहले ही रिमूव ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ कैलकुलेट करना है. बेसिक फिर वही ਤੁਹਾਨੂੰ कार्ड्स ਦੀ नॉलेज होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन ਅਸੀਂ देखते हैं. क्वेश्चन है ਸਾਡੇ ਕੋਲ, a bag contains 6 blue balls. A bag contains 6 blue balls and some black balls. 6 blue balls है बैग ਦੇ ਵਿੱਚ, कुछ black है, कितनी है सानू नहीं पता. If probability of drawing a black ball, मतलब एक black ball ਕੱਢਣ ਦੀ probability of drawing a black ball is double the probability of drawing a blue ball. Find the number of black balls in the bag. Find the number of black balls in the bag. तो देखो जो सानू पता है उसी को लिख लेने हैं. Number of blue balls in the bag is equals to किन्नियां ने 6. ब्लैक बॉल्स किन्नियां ने सानू नहीं पता, सी वो फाइंड करना है. लेट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स in the bag is equals to x. ਅਸੀਂ मान लिया ब्लैक बॉल्स किन्नियां ने x. Therefore total number of balls in the bag. बैग ਦੇ ਵਿੱਚ टोटल balls किन्नियां ਹੋਣਗੀਆਂ 6 plus x. किन्नियां balls ਹੋਣਗੀਆਂ 6 plus x. ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ क्वेश्चन 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ. क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ that probability of drawing a blue ball is equals to twice the probability of drawing the black ball. Probability of drawing a black ball, probability of black ball is equals to 2 times probability of blue ball. ਹੁਣ देखो black ball ਦੀ probability कितनी होएगी. Favorable outcomes upon total possible outcomes. फेवरेबल ब्लैक किन्नियां ने x, टोटल किन्नियां ने 6 plus x. 2 मल्टीप्लाई ब्लू बॉल्स किन्नियां ने 6,
टोटल कितनियां ने 6 प्लस x एक कट गया ਇਹਦੇ ਨਾਲ सो x कितना आ गया साडे कोल 12 means number of black balls in the bag is equals to 12 next question देखते हैं 4 coins are tossed simultaneously find the probability of getting at least 3 heads, at most 2 heads, at most 1 head, exactly 3 tails. ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਐਟ ਮੋਸਟ ਤੇ ਐਟ ਲੀਸਟ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 4 coins are tossed ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ 4 coins toss ਕੀਤੇ ਇੱਕ coin toss ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੋ ਪੋਸੀਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਹੈਡ ਔਰ ਟੇਲ 4 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 16 ਪੋਸੀਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਹੋਣਗੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇ ਹੈਡ ਜਾਂ ਫਿਰ 3 ਤੇ ਹੈਡ 1 ਤੇ ਟੇਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਹੈਡ 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 ਟੇਲ ਹੈਡ ਹੈਡ ਟੇਲ ਹੈਡ ਹੈਡ ਟੇਲ ਹੈਡ ਹੈਡ ਟੇਲ ਹੈਡ 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 3 ਟੇਲ 3 ਹੈਡ 1 ਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਕੇਸਿਸ ਬਣਨਗੇ फिर 2 हेड 2 टेल तो इस तरह हो सकता है हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड 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 टेल हेड टेल टेल हेड टेल हेड ए पॉसिबिलिटीज है फिर 3 टेल 1 हेड टेल 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 हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड टेल 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 या चारों की होंगे टेल तो देखो 16 होए कि नहीं होए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हजे 15 होए है एक बाकी है देखते हैं केड़ा बाकी है हेड टेल दे विच ए वाला रह गया हेड टेल टेल हेड हो गया टेल हेड हेड टेल रहंदा है टेल हेड हेड टेल हुन हो गए साडे कोल 16 सो सॉल्यूशन दे विच देखो फर्स्ट है एट लीस्ट 3 हेड्स फर्स्ट पार्ट E1 इवेंट ਅਸੀਂ डिफाइन करते हैं एट लीस्ट 3 हेड्स ਦਾ मतलब है ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 हेड्स होने चाहिए ने 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਚੱਲਣਗੇ ਪਰ 3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ 3 ਚੱਲਣਗੇ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣਗੇ 3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 4 ਚੱਲੇਗਾ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 3 ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੈਡ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ ਸੋ probability of E1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 1 2 3 4 5 upon total are 16 second is E2 at most 2 heads ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਹੋਣ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ 2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ at most 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ maximum 2 maximum 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੱਲੇਗਾ 1 ਚੱਲੇਗਾ 0 ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ मैक्सिमम ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਘੱਟ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ 0 ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ 1 ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ 2 ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਸੋ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਹੈਡਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 4 ਆ ਗਿਆ
ए नहीं चलेगा, ए भी नहीं चलेगा, ए भी नहीं, ए भी नहीं, 3 ने 2 यस 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 2 हेड ने सब दे विच, एक हेड है चलेगा यस 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 यस, कोई हेड नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 तो ਵੱਧ नहीं होने चाहिए, घट दे उत्ते उन्हें कोई रिस्ट्रिक्शन दिती ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा। सो फेवरेबल किन्ने आए साडे कोल, आ वाले ਜਿਹੜੇ मैं टिक कीते तुसी सारे लिस्ट कर लेने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो probability of E2 is equals to 11 upon 16। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲਿਖਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਟਿਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ E3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, at most one head, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹੈਡ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ, कोई नहीं चलेगा, 3 ते 2 ने, ये भी नहीं चलेगा, ये चलेंगे, एक हेड है, टेल 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 हेड, टेल टेल हेड टेल, टेल हेड टेल टेल, फिर हेड टेल टेल टेल, टेल 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 टेल, लास्ट वाले कोई हेड नहीं है, 0 हेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक तो ਵੱਧ नहीं होना चाहिए, घट जिन्ने मर्जी होन। The probability of E3 is equals to, count करो 1 2 3 4 5 5 upon total किन्ने सी साडे कोल 16। ये हो गया साडा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो, exactly 3 tails, 3 tails होने चाहिए exactly, ना कट ना वध। तो 3 tails किधे विच आ रहे हैं, बस 1 2 3 4 होर किते नहीं आ रहे। सो फोर्थ पार्ट जेड़ा है साडे कोल एग्जैक्टली 3 टेल्स वाले दे विच साडे कोल केड़े केड़े इवेंट्स आएंगे, आउटकम्स आएंगे, टेल 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 हेड, टेल हेड टेल टेल, हेड टेल 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 एंड टेल टेल हेड टेल, 4 आउटकम्स आ गए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 विल बी 4 upon 16 means 1 upon 4 is our answer। एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 2 customers visit a particular shop on any of the weekday from Monday to Saturday, from Monday to Saturday। ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, each one is equally likely to visit the shop on any of the day। Find the probability that they both visit on same day, they both visit on same day, both visit on different days, both visit on adjacent days। चलो, 2 कस्टमर ने शॉप विजिट करन जाना है, मंडे टू सैटरडे किसी भी दिन विजिट कर सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली का मतलब है दोवें किसी भी दिन जा सकते हैं। इस तरह कुछ नहीं है कि किसी दिन सैटरडे नू जान दी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती है या मंडे नू जान दी ज़्यादा बनती है। हर डे दोवें कस्टमर किसी भी दिन विजिट करन जान, सब दी प्रोबेबिलिटी सेम है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि दोवें सेम डे ते किसी पर्टिकुलर शॉप ते चले गए या डिफरेंट डे ते गए या फिर एडजेसेंट मतलब नाल नाल दे दिन, मतलब एक अगर मंडे चला गया दूसरा ट्यूसडे चला गया, इस तरह। चलो पहले सैंपल स्पेस देखते हैं। सैंपल स्पेस की पॉसिबिलिटी है जेडे अपने को 2 कस्टमर्स ने, मान लो द फर्स्ट वन इज
राहुल, सेकंड इज सौरभ। तो इस तरह हो सकता है राहुल गया मंडे नू, सौरभ गया वो भी मंडे नू। मंडे मंडे पॉसिबल, मंडे ट्यूसडे पॉसिबल, मंडे वेडनेसडे पॉसिबल, मंडे थर्सडे पॉसिबल, मंडे फ्राइडे पॉसिबल एंड मंडे सैटरडे पॉसिबल। इस तरह हो सकता है कि फर्स्ट कस्टमर मंडे नू गया, सेकंड भी मंडे, फर्स्ट मंडे सेकंड जड़ा है ट्यूसडे, इस तरह पॉसिबल है। इस तरह भी पॉसिबल है पहले वाला जड़ा है वो गया, फर्स्ट जड़ा कस्टमर है वो गया ट्यूसडे, सेकंड वाला गया मंडे, ट्यूसडे मंडे, पहले वाला गया ट्यूसडे, दूसरे वाला भी गया ट्यूसडे, ये भी पॉसिबल है। ट्यूसडे वेडनेसडे, इस तरह ये भी पॉसिबल ने। फिर वेडनेसडे मंडे तो लेके वेडनेसडे सैटरडे, थर्सडे मंडे तो लेके थर्सडे सैटरडे, फ्राइडे मंडे तो लेके फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे मंडे तो लेके सैटरडे सैटरडे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 × 6 36 आउटकम्स आर टोटल। ये मैं तुहानू समझाने नहीं लिखा है, नहीं भी लिखोगे ता भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुसीं इदां लिखोगे देयर आर 36 possibilities in total। 36 possibilities नहीं, both visit on same day। फर्स्ट है probability फाइंड करनी है, both visit on same day। तो सेम डे विच केड़ा केड़ा आएगा, मंडे मंडे, ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे। 6 टोटल कितने ने 36। सेकंड है बोथ विजिट ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिन होने चाहिए। तो देखो असि इस तरह भी कर सकते हैं बड़े इजीली, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी सेम डे वाली, जो सेम डे नहीं होएगा तो ऑब्वियसली डिफरेंट डे होएगा। तो 1 माइनस दिस इज व्हाट 1/6, 1/6 नु सॉल्व कर दो, आंसर इज 5/6। थर्ड है साडे कोल एडजेसेंट डेज, एडजेसेंट मतलब नाल नाल दे, नाल नाल दे केड़े होणगे, मंडे दे नाल हो गया साडे कोल ट्यूसडे, ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਆਇਆ ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏਗਾ ट्यूसडे मंडे, ये भी एडजेसेंट है, ट्यूसडे वेडनेसडे, ये भी एडजेसेंट है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਡजेसेंट नहीं सी, ट्यूसडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। फिर ਇੱਥੇ आएगा वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे मंडे वेडनेसडे ट्यूसडे भी आएगा। ता वेडनेसडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे थर्सडे, ये भी की ने एडजेसेंट। दो इधरों आ गए, दो इधरों आएंगे, थर्सडे दे नाल फ्राइडे और थर्सडे दे नाल वेडनेसडे। दो इधरों आएंगे, फ्राइडे दे नाल सैटरडे, फ्राइडे दे नाल थर्सडे। दो इधरों आएंगे सैटरडे दे नाल केड़ा आएगा फ्राइडे, इक्को ही आएगा। फर्स्ट वाली रो दे विचों इक्को ही आएगा मंडे ट्यूसडे, क्योंकि ਇਹਦੇ ਨਾਲ दूसरा एडजेसेंट ਸੀਗਾ संडे, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ सैटरडे ਦੇ ਨਾਲ दूसरा एडजेसेंट संडे होना ਸੀ, ਉਹ ਹੈ नहीं। ਤਾਂ फर्स्ट एंड लास्ट ਉਹ इक्को आया और बाकी सब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 2 2 4 2 6 2 8 9 ਤੇ 10। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 10/36। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। हाँ जी, उम्मीद है तुहानू ये क्वेश्चन समझ आया होएगा। हुण असीं कंक्लूड करदे हां, जरा असीं देखदे हां असीं प्रोबेबिलिटी दे विच की सिੱਖਿਆ। कॉइन्स नाल रिलेटेड क्वेश्चंस, डाइस नाल रिलेटेड क्वेश्चंस ते ओदे नाल असीं सिੱਖਿਆ कार्ड्स दे नाल रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर मैं तुहानू दस रही हां प्रोबेबिलिटी वेरी ईजी। जस्ट असीं की करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पर सानू पता की होना चाहिए, कॉन्सेप्ट नॉलेज होनी चाहिए, कार्ड्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज बेस्ड है सारा, और फॉर्मूला इक्को ही लगना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। एक दो मेन रिजल्ट्स है वो असी रिवाइज कर लेने। जो प्रोबेबिलिटी है एदा आंसर कदी 1 तो वड्डा नहीं आ सकता,
या तो 1 तो छोटा होएगा या 1 दे इक्वल होएगा, कदी 0 तो छोटा नहीं हो सकता, या 0 तो बड़ा होएगा या 0 दे इक्वल होएगा। अगर श्योर इवेंट है मतलब उन्हें होना ही होना है, ता श्योर इवेंट दी probability ऑफ श्योर इवेंट इज इक्वल्स टू 1। probability ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट जिन्हें नहीं होना उदी probability है 0। श्योर इवेंट जिन्हें होना ही होना है उदी probability 1, इम्पॉसिबल दी 0, और probability ऑफ इवेंट E प्लस probability ऑफ नॉट E इज इक्वल्स टू 1। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि probability of not E की ਹੁੰਦਾ है 1 minus probability of E। और एक आहा मेन चीज probability of E lies between 0 and 1, दोहां ते इक्वलिटी आनी है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर दे विच सिलेक्ट द राइट आंसर, इस तरह लिखा हुंदा है 0 to 1, इस तरह लिखा हुंदा है एक दे नाल इक्वलिटी है एक दे नाल नहीं है, एदे नाल है एदे नाल नहीं है, या दोवां दे नाल है। तो केड़ा राइट है साडे कोल ए वाला। पर अगर वो कह दे E is the event, E is any event, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं देती, then this is our right answer। मैनू उम्मीद है तुहानू कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ते जेडे भी क्वेश्चंस असी डिस्कस कीते वो समझ आए होंगे। इन्हां दी प्रैक्टिस जरूर करनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी टॉपिक है। जे किसी भी क्वेश्चन दे विच किसी भी तरह का डाउट आता है तो तुसीं सानू साडे WhatsApp नंबर ते कॉल कर सकते हो ते अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।